Check. Pause recording. Checkbox not checked. Check. Need to move line press the arrow keys. Nico pause and heading left. Control E. Your microphone is on. Control E. Your camera is on. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्किंग कर रहे थे। आज भी हम एक्सेल को ही देखेंगे मजीद और उसकी कुछ न्यू चीज़ों को हम डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। Numeric system left of meeting. हम चलते हैं अपने Control E. Your camera is on. जो एक्सेल Windows 10 desktop folder view list view option 1016. मेरे Type in the arrow सिस्टम keys and की और मेरी वॉइस आप तक आ रही है तो जरा मुझे काइंडली बता दें। Windows 10. Slow. Yes, sir. Add new installer. Op Studio 10 of 6. अच्छा जी, हम अपने एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और उसमें जो मेरे पास एक शीट बनी हुई है जो हमने बनाई हुई है उसको ओपन करते हैं। लेकिन उसको ओपन करने से पहले एक काम जो आज की हम वीडियो में करेंगे वो कुछ लैंग्वेज सेटिंग के हवाले से है, क्योंकि कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो लैंग्वेज सेटिंग के अंदर अगर उनको ना चेंज किया जाए तो वो आपका काम जो हम करना चाहेंगे वो नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे, यानी विंडो का बटन प्रेस करेंगे। Search box edit. Type in text. यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज। Language settings. System settings. Press. हमारे पास सामने ही आ गया है लैंग्वेज सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग्स। तो एंटर प्रेस कर Enter. Settings. Settings. Language. Windows display language. Windows display language combo box. English United States. To change the selection, use the arrow keys. ये चीज कंट्रोल पैनल से भी की जा सकती है। अब कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग में जाके ये चीज वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्ट से यानी आप सर्च के जरिए या विंडो के जो सर्च फीचर है उसके जरिए करना चाहें तो लैंग्वेज आप लिखेंगे तो आपके सामने लैंग्वेज सेटिंग जो है वो आ जाएगी। यहाँ से हम शिफ्ट टैब करते हैं। Manage speech language button to activate. Press space. फिर एक दफा शिफ्ट टैब करेंगे। Manage keyboard language button to activate. Press मैनेज कीबोर्ड लैंग्वेज बटन, हमें इस पे स्पेस प्रेस करना है। space. Keyboard home button to activate. Press space bar. हमारे पास जो लैंग्वेज इनपुट की है वो सेटिंग आ गई। यहाँ से टैप करेंगे। Override for default input method. Override for default switching input methods. Let me टैप करेंगे। use the desktop language bar when it's available. Check language bar options link. फिर टैप करते आएंगे हम। Input language hotkeys link. Emoji. Switching input methods. Input language hotkeys link. इनपुट लैंग्वेज हॉटकीज लिंक। हमें इसके अंदर आना है और यहाँ पे आके Space. Text services and input languages dialog. Advanced key settings page. To turn off caps lock, press the caps lock key radio button checked. 1 of 2. To change the selection. अच्छा जी, ये जो सेटिंग आपकी खुली है यहाँ से हम नेविगेट करेंगे टैब की मदद से। Hotkeys for input languages. Key sequence list box between input languages. Left alt plus shift. 1 of 3. To move to an item, press the arrow keys. इसको भी नहीं छेड़ेंगे हम। Hotkeys for input languages. Change key sequence button to activate. Press space bar. Alt plus यहाँ C. पे हमें ऑप्शन मिलेगी चेंज की सीक्वेंस वाली, इसको हम स्पेस बार से एक्टिव करेंगे। Space. Change key sequence dialog. OK button to activate. Press space bar. चेंज की सीक्वेंस डायलॉग हमारे पास ओपन हुआ, यहाँ से टैप करते हैं। Cancel button to activate. Press space bar. या शिफ्ट टैब से भी आप आ सकते हैं, लेकिन मैं टैब से मूव कर रहा हूँ। Switch input language not assigned radio button not checked. 1 of 4. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus N. टैप करके एक और आगे आपको दिखाता हूँ। Switch keyboard layout not assigned radio button not checked. 1 of 4. To change the selection, press up or OK button to activate. Press. यहाँ पे हमारे पास ये दो एडिट बॉक्सेस हैं। शिफ्ट टैप करेंगे दो दफा। Switch input language not assigned radio button not checked. 1 of 4. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus N. ये वाली जो ऑप्शन है Switch input language not assigned radio button. स्विच इनपुट लैंग्वेज नॉट असाइन, Switch input language not assigned radio button checked. 1 of 4. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus N. जब आप इसके ऊपर आएंगे तो ये नॉट चेक होगा। स्पेस के जरिए भी चेक कर सकते हैं या एक दफा डाउन एरो करके अप एरो दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। हमें ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन हमें काम सिर्फ यही करना था। अब टैब की मदद से इसको ओके करते हैं। Switch keyboard OK but space. Hotkeys for input languages. Change key sequence button to activate. अब टैब की मदद से यहाँ पे अगर सेव है तो हम OK button to activate. Press space. Cancel button. OK but space. Click on Settings. that. Switching input emoji panel. Don't close. यहाँ पे देखते हैं। Get help. Home button. Override. Switching input. Use the language input language hotkeys link. Emoji panel. Don't close the panel automatically after an. यहाँ पे Get help. तो Get help सेव link. नहीं है, दो दफा ओके मांगेगा, आप इसको Alt F4. Desktop. ओके कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने जो एक्सेल है उसको ओपन कर लेते हैं। Windows R. Run dialog. Type enter.
Desktop. Folder view. List view. Op Studio 10 of 16. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Opening Excel. Opening Excel. Excel. New list box. Blank workbook 1 of 5. To move to an item, press the arrow keys. Alt followed by F H Y2. एक्सेल हमारा ओपन हो गया। मैं टैब से रिसेंट्स में जाके अपनी जो हमारी शीट है उसको हम ओपन कर। More template. Search edit. Open. Recent list box. Test sheet. Enter. To move to an item, press the arrow keys. Test sheet. XLSX. Excel sheet 1. End of sheet F13. 72 cells. 0 objects. Serial A8. हमारी शीट जो है वो ओपन हो चुकी है। इसमें हमारे पास कॉलम्स एंड रोज की सूरत में हमने इसमें डाटा लिख रखा है और ये डाटा हमारे पास इस वक्त मौजूद है। अब हमने Names. Serial A8. यहाँ पे आज की इस क्लास में ये सीखना है बेसिकली कि हम अपने डाटा के अंदर न्यू कॉलम्स को, न्यू रोज को और न्यू सेल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, अपने कॉलम्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं और अपनी रोज को किस तरीके से डिलीट किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसमें सीख लेते हैं कि अगर हमें एक नई रो पूरी की पूरी एक लाइन अगर हमें चाहिए तो वो हम किस तरीके से ले सकते हैं। इसके दो तरीके। Names. Serial A8. अब ये आपने देखा होगा कि 5 A6. 4 A5. Blank. Serial A8. Blank A7. हमारे पास 5 4 2 1. Serial A. Names. Serial A1. A1 में सीरियल है यानी ये हेडर टेक्स्ट है हमारे पास। Names. B1. नेम्स है, Class C1. क्लास है, Subject D1. सब्जेक्ट है, Total E1. टोटल Obtained है, F1. obtained है। Blank G. Names. लेकिन इसके ऊपर हमारे पास कोई लाइन नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल आपने हेडर्स लगा लिए, कॉलम्स के अंदर अपनी हेडिंग्स लगाई, बट आपको बाद में याद आया कि हमने ऊपर इस पूरी जो हमने फाइल सेव की है इसका टाइटल नहीं दिया। अब उसके लिए आपको ऊपर एक रो चाहिए होगी। अब वो रो आपको कैसे मिलेगी? 1. Serial A1. हम इस वक्त A1 में मौजूद हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम एप्लीकेशन की Applications. Group cut 1 of 5. To move through items, press up or down arrow T. अप डाउन एरोज की मदद से यहाँ पे एक दफा देख लेते Copy 2 of. Paste options. Keep. Group. Paste special. Smart lookup 1 of. Insert dot 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 1 of 3. I. हैं। इंसर्ट आई, Delete dot 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 2 of 3. D. Clear contents 3 of 3. And translate 1 of 1. S. Quick Really? analysis 1 of 3. Q. Filter submenu 2 of 3. Sort submenu 3 of 3. So get data from table slash new comment 1 of 2. M. ये सारी हमारे Escape leaving menus. Serial A1. मेन्यू की ऑप्शंस 1. Serial A1. A1 में मौजूद हैं। इसके ऊपर हमें रो लेनी है तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन की Applications. Group cut 1 of 5. आई I. प्रेस Insert dot करते dot हैं। dot 1 of 3. I. Enter. Leaving menus. Insert. Insert. Shift cells right radio button checked 1 of 4. जब हमारे पास इंसर्ट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यहाँ से डाउन एरो की मदद से, Shift cells down radio button checked 2 of 4. To change this entire column radio button. Shift cells right entire row इंटायर रो, Shift entire row radio button checked 3 of 4. To change the selection, press up or down arrow Alt plus R. इस पे जब हम एंटर प्रेस Enter. करते तो ये Blank हमारे A1. पास Blank A1. रो ऐड हो गई। अब यहाँ से मैं अब देखें कि ऊपर Blank B1. B1 Blank C1. C1 ये खाली आ गए। Blank अब पहले हमारा A1 में सीरियल था, यहाँ से डाउन एरो कर, Serial A2. अब ये A2 में चला गया। Names B2. हमारे हेडर्स Class subject total E2. Obtained Blank G2. नीचे आ गए। अब Total हमारे class पास names Serial A2. इसके ऊपर Blank A1. भी रो मौजूद है। इस तरीके से हम अपनी रो को ऐड कर सकते हैं। इसको अब डिलीट भी साथ ही करते हैं। डिलीट करने के लिए भी हमें क्या करना है, एप्लीकेशन की प्रेस करनी है। Applications group cut 1 of 5. To move through items, press up or down यहाँ से डी प्रेस D. करेंगे। Leaving menus. Delete. Shift cells left radio button checked. Shift cells up. डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डिलीट वाला, Entire row radio button checked 3. इंटायर। Enter. Serial A1. Serial A1. अब आपने नोट किया होगा जब मैंने इंटायर रो पे एंटर किया उसको डिलीट करने के लिए, तो हमारे जो सेल A2 में चले गए थे, नीचे वाली रो में आ गई थी चीजें, वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ गई हैं। 1. Serial A1. Names B1. यहाँ पे अब वही असल हालत इसकी। Serial A. इसको मेन्यूज के जरिए भी किया जा सकता है। उसकी कमांड है ऑल्ट दबा के रखेंगे और लिखेंगे I+R, यानी ऑल्ट आपने दबा के रखना है। Alt I upper ribbon expanded. Alt R leaving menus blank A1. Leaving ribbons blank A1. Serial A2. Blank A1. हमारे हेडर के ऊपर हमारे पास एक न्यू लाइन फिर से ऐड
हो गई है। Blank B1. इस तरीके से Blank A1. दोनों मेथड्स के जरिए आप अपनी जो रो है उसको ऐड कर सकते हैं। इसको डिलीट कर Applications. Group cut 1 of 5. D. Leaving menus. Delete. Delete. Shift cells up. Entire row. Enter. Serial A1. 1. 8. Serial A1. हमने अपनी रो को डिलीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल Names B1. Serial हमें A1. हम चाहते हैं कि Names. Serial A1. Names. Class C1. Names यहाँ B1. पे ये जो नेम्स और सीरियल है इसके दरमियान हमें एक नया कॉलम चाहिए। कॉलम जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ सेल्स होते हैं और रोज लेफ्ट से राइट की तरफ सेल्स जाते हैं। अब हम एक कॉलम ऐड करते हैं, इसकी Serial names B1. यहाँ पे ऐड करते हैं। इसकी पहले मेन्यू कमांड है Alt plus I plus C। Alt I. Upper ribbon. Expand. Alt C. Leaving menus. Blank B1. Leaving ribbons. Blank. Serial A1. A1 हमारा उसी जगह सीरियल में मौजूद है। Blank B1. B1 ये Blank. प्लस Blank. नीचे Blank B4. Blank B5. Blank B6. Blank B7. Blank B8. Blank B9. ये सारी रो हम Blank B10. खाली हो गई, लेकिन Blank B1. Start. Blank. Blank B1. हमारा जो लिखा हुआ था पहले Names C1. B1 में जो था वो हमारे नेम से, अब वो C1 में चले गए। Blank B1. तो डिलीट करते हैं उसी तरह। एप्लीकेशन की Applications. Group cut 1 of 5. To move through items, press up or down. डी प्रेस D. करेंगे। Leaving menus. Delete. Delete. Shift cells left. Right. अब इसमें हमारे पास आएगा एंटायर कॉलम। Shift cells up. Radio. Entire row. Radio button. Entire column. Radio. एंटायर कॉलम आ गया। Enter. Names B1. Names अब B1. हमारे Serial. Names B1. वापस उसी जगह पे हमारा जो टेक्स्ट था वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया और हमारा जो था जो नया कॉलम हमने लिया था वो डिलीट हो गया। अब अगर Serial. Names B1. हमें उसी तरह कॉलम ऐड करना है, इसकी कमांड मेन्यू के जरिए Alt plus I plus C थी, वहां से भी कर सकते हैं इसको। और दूसरा तरीका Serial. Names B1. Applications. एप्लीकेशन की Group cut प्रेस 1 of करें। डी इंसर्ट के लिए I. Insert dot 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 1 of 3. डाउन एरो से नीचे आके इंसर्ट पे एंटर। Enter. Leaving menus. Insert. Insert. Shift cells right. Right. अब यहाँ से हम पूरा कॉलम Shift cells down. Right. Entire row. Radio button. Entire column. Radio button. एंटायर कॉलम कर लें। Enter. Blank B1. Blank. Serial A1. ये देखें Blank B1. Names C1. Blank B1. ये ऐड नया कॉलम हो गया है। इसी तरीके से हमने रो भी ऐड की और हमने पूरा कॉलम भी ऐड हमने इसमें किया है। अब इस Serial. Blank B1. Applications. करते हैं। Group cut D. Leaving menus. Delete. Delete. Shift cells up. Entire row. Radio button. Entire. Enter. Names B1. Names B1. हमारा जो कॉलम है वो भी ऐड हो गया। अब हम चलते हैं कि अगर हमें सेल ऐड करना है तो सेल किस तरीके से ऐड हो सकता है। Serial A1. हम Name. Serial A1. यहाँ पे हमें एक सेल नया चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एप्लीकेशन की प्रेस Applications. Group cut 1 of 5. To move through items, press up or down arrow. T. आई I. प्रेस Insert dot 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 1 of 3. I. Enter. Leaving menus. Insert. Insert. Shift cells right. Radio button checked. 1 of 4. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus I. अच्छा जी, अब हमारे पास जब हमें सेल चाहिए होगा तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। Shift cells down. Radio button checked. 2 of 4. Entire column. Radio button checked. Shift cells right. Radio button checked. 1 of 4. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus I. शिफ्ट सेल्स राइट रेडियो बटन चेक, इस Enter. पर प्रेस Blank A1. Serial B1. Blank A1. 1 A2. Blank. Serial B. Abdullah B2. Serial अच्छा, B1. अब Blank इससे A1. होगा ये Serial B1. हमारा A1. जो जब हमने शिफ्ट सेल्स राइट रेडियो बटन चेक पे एंटर किया तो जिस सेल पे हमारा फोकस था वो सेल वहां से हट के डाटा राइट साइड पे चला गया और सबसे पहला वाला सेल खाली हो गया। इसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे Serial B1. B1 में है तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे एक खाली सेल चाहिए, ये B1 जो है हमारे पास खाली हो जाए और हमारा जो टेक्स्ट है वो आगे को मूव कर जाए अगले सेल्स में। फिर एप्लीकेशन की Applications. Group cut. I. प्रेस Insert dot dot करेंगे, dot. एंटर प्रेस Enter. करते हैं Leaving यहाँ पे menus. Shift cells. Shift cells right. Radio button. शिफ्ट सेल्स। Enter. Blank B1. Blank अब आप B1. देखें कि हमारे Blank पास A1. A1 और Blank B1. Serial C1. दोनों जो है वो खाली हो गए और हम Names. Class. Subject. Total G1. Obtained H1. Blank I1.
आगे चला गया। इस Name तरीके से land A1 हम यहाँ land पे सेल serial C1 ऐड कर सकते हैं। undo serial B land A1 मैं serial इसको B1 एक दफा undo मजीद serial A अंडू करता हूँ। names serial A1 कंट्रोल Z से अगर अपने ओरिजिनल हालत में वापस लाना हो तो आप कंट्रोल Z करेंगे तो चीजें अपनी हालत में आ जाएंगी। अब इसमें names serial A1 सीरियल A1 में है। अब हम चाहते हैं सेल ऐड करें। दूसरी ऑप्शन देखते हैं इसकी, एप्लीकेशन की प्रेस करके आई प्रेस करके एंटर प्रेस करते हैं हम। applications group cut Y insert dot 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 to enter leaving menus insert shift cells right radio button checked पहले हमने अपने जो सेल्स थे उनको राइट साइड पे मूव करा के हमने उनको क्या किया था कि हमने उनको जो है वो सेल खाली किया था। अब हम shift cells down radio button checked 2 of 4 to change the selection press up or down arrow alt plus सेल्स D डाउन रेडियो बटन चेक। अब इस पे हम enter एंटर land A1 हैं। land names B1 अब हमारे जो नेम्स हैं वो तो उधर ही हैं, land A1 लेकिन जो हमारा सीरियल वाला कॉलम था serial A2 वो नीचे चला गया और जहाँ land A1 सीरियल था वो सेल वहीं तो वो खाली हो गया और उसकी जगह जहाँ डेटा लिखा हुआ था वो नीचे की तरफ मूव कर गया। इस तरीके से आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि या तो अपने डेटा के सेल्स को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें और ऊपर खाली सेल ले लें, या उनको राइट साइड पे शिफ्ट करें और आप डेटा ले लें। जैसे names B1 नेम्स हैं, फिर इसको हम शिफ्ट करते हैं, applications group cut आई I प्रेस insert dot करेंगे, dot dot इंसर्ट enter करेंगे, leaving menus insert shift cells right radio शिफ्ट सेल्स डाउन, shift cells down radio एंटर। enter land B1 अब ये class देखें C1 क्लास ऊपर है, land A1 A1 और A2 जो B2 B1 जो है वो serial A2 खाली हैं। सीरियल नीचे आ, names B2 नेम्स नीचे आ 6 C2 और ये class C1 बाकी चीजें ऊपर हैं। land ये वाले land हमारे A1 दोनों सेल्स इस वक्त undo serial A1 so खाली हो गए। इस तरीके से आपको अगर कोई एक सेल चाहिए हो आप उसको भी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट चीज कर लेते हैं। लास्ट चीज ये है कि हम अपने जो शीट्स हैं इनके अंदर हम अपने जो रोज हैं या कॉलम्स हैं इनको हम हाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी डाटा शीट है जिसमें कुछ सीक्रेट चीजें हैं या कुछ प्राइसेस हैं या कुछ कोड्स अगर लिखे हों जो आप दूसरों को दिखाना ना चाहें और आप चाहते हैं कि आप वाली जो आपके पास जो कुछ प्राइवेट डाटा है वो किसी और को शो ना हो, आपकी शीट पे वो ना देख सके, तो उसको हमने किस तरीके से करना है। names B1 serial A1 फॉर एग्जाम्पल names B1 हम ये जो नेम वाला Abdullah B Usman Shoaib Usman B Abdullah B2 names हम ये B1 चाहते हैं कि ये हमारी शीट में से पूरा का पूरा कॉलम जो है वो हाइड हो जाए। अब इसको हाइड करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है पहले कॉलम। select an entire column select B1 names B1,048,576 blank ये ऊपर से लेके नीचे तक सारा कॉलम सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल स्पेस से हमने इसको सिलेक्ट किया था। अब अगर हम यहाँ पे रहते हुए इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस control 9 करें, serial A names B1 class C names B1 अब ये class C subject D total E1 हाइड हमारे पास हो गया है। subject class names B serial A1 ठीक है जी, अब names B1 इसको select an entire column select control shift 0 names B1 class C1 मेरे पास यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, किसी वजह से ये हाइड और अनहाइड में कुछ names B1 टू करेगा। serial A1 फॉर एग्जांपल हम इसको एक सेकंड रुकेगा जरा, मैं इसका एक select an entire column select A1 Okay. serial B1,048,576 blank select A1 serial C1 million इसको control shift 0 serial A1 name class names अच्छा जी, undo select B1 हमारे Abdullah पास B2 जो है वो कुछ गड़बड़ है। अगर आपने पूरे कॉलम को हाइड करना है तो उसके लिए तरीका ये है कि उस कॉलम को सेलेक्ट करें। Abdullah B2 names B1 select an entire column select हमने इसको सेलेक्ट किया, अब इसको मेन्यू से हाइड करके देखते हैं, मे बी कि ये यहाँ से मान जाए
इसके लिए हमें Alt H Alt H, upper ribbon, Alt O, cell size group, row new, group, hide rows, control plus 9, 1 of 3, control plus 9. Hide columns, control plus 0, 2 of 3, अच्छा control plus 0. सॉरी, मेरे माइंड में कंट्रोल 9 घुसा हुआ था कॉलम के लिए, लेकिन वो कंट्रोल 0 है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल Escape, visibility सेव group, करते items, हैं। escape, upper ribbon, cells group. Escape, leaving menus, home tab, 2 of 11. Escape, leaving menus, leaving ribbons, selected range, B1, names, B1,048. अच्छा, अब हम यहाँ पे कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। Control 0. Class, C, serial, A1, 1, A2, 6, C2, adjacent to hidden. हाँ, ये भी चीजें जिंदगी के साथ साथ हैं कि कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं माइंड में कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से मिक्सअप भी होता है। तो कंट्रोल 0 से आप पूरे के पूरे कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1, A2, adjacent to hidden, serial, A1, adjacent सीरियल to hidden था, cells. लेकिन अगर राइट एरो कर Class, C1, adjacent to hidden cells. तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम आ रहा था नेम्स वाला। अब वो पूरा का पूरा कॉलम जो है जिसमें हमारे नाम थे, वो पूरा का पूरा कॉलम हाइड हो गया। अब वो उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता। कॉलम को जो हाइड किया हुआ है, इसको वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको याद होगा कि हमारा नेम लिखा हुआ था B1 वाले रो और कॉलम में। अब हमें क्या करना है कि उससे पहले वाला और उससे अगले वाले दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर, Serial, A1, adjacent to hidden cells. जैसे ये है हमारा B1, इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल स्पेस। Selected entire column, select A1, serial, A1,048,000. अब हम यहाँ से ही कुछ मजीद नहीं करेंगे, एक दफा शिफ्ट राइट एरो करेंगे। Select A1, serial, C1,048,576, blank. अब हमारा A और C, B तो हाइड है। अब हम A को और C को हमने सेलेक्ट कर लिया, पहले कॉलम को सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस स्पेस से, उसके बाद एक दफा शिफ्ट राइट एरो किया तो हमारा अगला वाला पूरा का पूरा कॉलम वो भी सेलेक्ट हो गया। अब अनहाइड करने के लिए उसी तरह जैसे हमने कंट्रोल 0 से कॉलम को हाइड किया था, कंट्रोल शिफ्ट 0 करेंगे। Control shift 0. Serial, A1, names, B1. ये देखें Abdullah, हमारा B2. ये वाला Names, B1. Abdullah, Usman, Shoaib, B4. पूरा का पूरा कॉलम वापस आ गया है। कंट्रोल 0 से हाइड होगा, लेकिन जब हम उसको हाइड कर देंगे तो उससे पहले वाला एक पूरा कॉलम, और ऑटोमेटिक सी बात है कि उससे अगला वाला, अगर आपने बी को हाइड किया तो आप सी को भी साथ सेलेक्ट करेंगे, तब फिर आप उसको अनहाइड कर पाएंगे। कॉलम्स हमने हाइड और अनहाइड सीखा। इसी तरह अगर हमने हाइड करनी है अपनी पूरी की पूरी रो को, फॉर 3, A4. हम 2, A3, 1, A2. ये वाली हमारी 2, A3. जो है वो लाइन 1, 2, A, Usman, B3. उस्मान है जिसमें 6, English, 50, E3. 44, F3. हम इस वाली रो 5, को 6, Usman, B2, A3. हाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है? शिफ्ट प्रेस करना है। Selected entire row, select A3, 2, except D3, blank. ये हमारी पूरी की पूरी जो रो है वो इस वक्त सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल Control 9. 1, A2, 3, A4, adjacent to अब hidden देखें cells. जो 2 वाली Shoaib, B4, इसमें adjacent to hidden cells. उस्मान वाला Abdullah, था, B2, adjacent. वो सारी की सारी Shoaib, B. रो हाइड हो चुकी है। अब इसी तरह इसको भी 3, अनहाइड करने A1, के लिए A2, adjacent to hidden, serial, A1. पहली लाइन को 1, A2, 3, A4. ओके, हमारी लाइन इस वक्त हाइड है 2 वाली, जिसमें सीरियल नंबर 2 आ रहा था, उस्मान वाली लाइन। अब हमें उस 1, A2, adjacent to hidden cell. इस लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट स्पेस, Selected entire row, select A2, 1, except D2, blank. और हमने इसी तरह शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो नेक्स्ट वाली पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। Select A2, 1, except D4, blank. अब हम कंट्रोल शिफ्ट 9 अगर प्रेस करेंगे तो ये लाइन हमारी अनहाइड हो जाएगी। Control shift 9. Serial A1, 1, 2, A3. Usman, B3, 6, C3. ये वापस हमारी लाइन जो है वो अनहाइड हो गई है। कंट्रोल प्लस 0 से पूरा कॉलम हाइड होता है, और कंट्रोल 9 से पूरी आपकी रो हाइड होती है। कंट्रोल शिफ्ट 0 से आपकी पूरा कॉलम वापस अनहाइड हो जाता है, और कंट्रोल प्लस 9 से, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 से आप उसको पूरे के पूरे को अनहाइड कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर हम उसके बाद मजीद इस पे बात करते हैं। ठीक है। Meet to move to an item.
Control D. Your microphone is off. More actions button menu collapsed. Seeker Campbell has left the meeting. Set ops 31.0. Pause recording checkbox.